کٹ 1F کے تحت تاحیات نااہلی کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی، فیصلہ 6-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی پر RO کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت، سابق گورنر میاں اظہر کو NA 129 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ NA 133 سے سردار ہارون احمد کو ریلیف مل گیا۔ PP 150 سے ڈاکٹر عمار جان کے کاغذات نامزدگی منظور، PP 55 سے ارسلان حفیظ کے کاغذات نامزدگی کلیئر۔ NA 70 سے حافظ حامد رضوان کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ PP 167 سے ملک ظہیر اور PP 139 سے اعجاز حسین کے کاغذات منظور۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے NA 130 لاہور سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ دوسرے جانب بانی PTI کے لاہور سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر بھی سماعت، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی اپیل پر RO سے کل ریکارڈ طلب۔ ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات حل نہ ہوئے، نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے آج پھر سر جوڑ دیے۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت مرکزی قائدین کی اہم ملاقاتیں، پنجاب، سندھ اور KPK میں ٹکٹوں کی تقسیم پر حتمی مشاورت جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سیاسی منظرنامے پر سامنے آ گئے، کہا میرے وزیر اعلیٰ بنتے ہی میرے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی، جتنا عرصہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہماری حکومت نے کسی کے خلاف کوئی غیر قانونی پرچہ بھی نہیں کیا۔ جتنا عرصہ میں چیف منسٹر رہا میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج کروایا۔ تو جب میری نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اچھے جو نمائندے ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے، جو لوگوں کی وہاں پہ جنون نمائندگی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، بہتر ہوگا، اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا جو بھی ہوگا۔ مسائل حل کرانے کے لیے عوام کو ترازو پر مہر لگانا ہوگی، امیدوار NA 128 لیاقت بلوچ کی UC 217 میں انتخابی مہم، کہا کہ علاقے میں بوسیدہ سڑکیں، ناکارہ سیوریج اور واٹر سپلائی لائن کے مسائل کو ٹھیک کرایا جائے گا۔ 9 مئی واقعات میں ملوث اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، پولیس ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا گیا، پولیس کو 382 ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے، ادھر ملزم افتخار حسین کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام سکولز 10 جنوری تک کھلیں گے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ 10 سے 22 جنوری تک سکولز 9:30 بجے کھلیں گے، طلبہ جیکٹس، گرم کپڑے اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں سکول کھولنے پر محکمہ تعلیم کا ایکشن، ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی لاہور متحرک، حکومت احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے سکولوں کے خلاف کارروائی، مختلف سکولز کی متعدد برانچز کو سیل کر دیا۔ عوام کی حفاظت اور امن و امان صورتحال ہوگی بحال، سیف سٹیز اتھارٹی پنجاب بھر کے شہروں کی مانیٹرنگ کے لیے تیار، انتہائی جدید ترین آلات نصب کیے جائیں گے، جرائم پیشہ عناصر کی فوری شناخت ہو سکے گی، اہلکاروں کو 720 فون اور 18 ڈرون کیمرے ملیں گے۔ محکمہ ریلویز کی اربوں روپے کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، شیرپا پل کے قریب قیمتی اراضی پر قابضین نے دکانیں بنا لی، افسروں اور پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی کاروبار چلنے لگا۔
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का SL3 मंसूबे का दौरा किया गया। तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मंसूबे पर काम में सुस्त रवि पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मॉनिटरिंग हो रही है। इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मदद करेंगे। इस टाइम पे अभी ब्रीफिंग FWO की तरफ से हुई है। डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किलात वेदर की वजह से आ रही हैं। मॉइस्चर जो है वो खुश्क होने में टाइम ले रहा है। जो आधा दिन लेता था काम वो 2.5 से 3 दिन पे जा रहा है। बट अभी भी हमारी कोशिश यही होएगी। मसला ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जल्दी में ये नहीं कर सकते कि हम थोड़ा पुश करें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो। बाबू साबू से न्यासे इंटरचेंज प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। ड्रेनेज का बदतरीन निज़ाम, सड़कों पर पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। ठेकेदार चलती ट्रैफिक के दौरान पुल तोड़ने में मसरूफ। पुराने स्ट्रक्चर्स को हटाने का काम मुकम्मल न हो सका। तामीराती काम में 50% नामुकम्मल। ताखीर से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। मंसूबे पर 10 अरब 84 करोड़ रुपए लागत आना है। कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल्ड एक्सीज कॉरिडोर बंद रोड बनाने का मंसूबा। दोनों पैकेजेस पर जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। पैकेज 1 के कामों में मजीद तेजी लाने के लिए मजीद वसाइल और लेबर लगाने की हिदायत कर दी। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दोबारा दौड़ेंगी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इंटरनेशनल फर्म से दस्तावेजात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का टोल टैक्स ऑनलाइन वसूल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास। माल बरदार गाड़ियों की चेकिंग के लिए 9 मकामात पर मुस्तकिल वेट स्टेशन कायम किए जाएंगे। जाहिद अख्तर जमान की एक्सल लोड मैनेजमेंट निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। अवामी खिदमत का मिशन, निगरान वज़ीर आला इन एक्शन। मनावा मियो कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने की डेडलाइन। सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मियो अस्पताल की कैंसर वार्ड को भी मनावा कैंसर अस्पताल में मुंतकिल करने की तजवीज़। तमाम इंतजामी और माली उमूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सोशल वेलफेयर पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी के ज़रिए नए इदारों के क़याम और मौजूदा इदारों के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। साल 2024 की पहली 7 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा। घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। DC लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। DC राफिया हैदर का मियां मीर अस्पताल का दौरा किया गया। इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और मुख्तलिफ वार्ड्स में अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। MS ने DC राफिया हैदर को इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। सर्द मौसम में डेंगू मच्छर की अफजाइश थम गई। 24 घंटे के दौरान शहर में 4 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में डेंगू के 5 मरीज सामने आए। लाहौर में रवा माह डेंगू के मरीजों की तादाद 7 हो गई। आगों के शहर में स्मोक के बादल न छट सके। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। टैक्स गोशवारे जमा न करने वालों के लिए डेडलाइन मजीद करीब। 7 दिन बाद सिम बंद, यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। कारोबार तो पहले ही तबाह हो चुके, मजीद तंग ना करें। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स के सरपरस्त आला शहजादा सलीम कहते हैं FBR धमकियों के बजाय मिल बैठकर मामला हल करें। तंबाकू और सिगरेट लॉबी की अरबों पे टैक्स चोरी सामने आ गई। सिगरेट लॉबी ने 7 बरस में 567 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया। तंबाकू और सिगरेट्स लॉबी हर रोज 22 करोड़ 19 लाख रुपए से जायद का टैक्स बचाती रही।
CTO अमारा अथर का अहसन इकदाम शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए फ्री हेलमेट तकसीम किए। कहा कि हमारा मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हेलमेट इन्फॉर्मेंस मुहिम के मस्बत असरात सामने आए हैं। कानून शिकनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 2023 में रिकॉर्ड 1,31,086 अफराद के चालान किए गए। साल 2022 की निस्बत 34% ज्यादा चालान और जुर्माना किया गया। अलहमरा हॉल में पंजाब हाईवे पेट्रोल की रेजिंग डे पर तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी शिरकत। पिछले साल में बेहतरीन कारकर्दगी पर PHP अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सीसा पिलाई दीवार हैं। कुर्बान लाइन्स में IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। खिदमत मरकज़ और जदीद थानों के उमूर पर गुफ्तगू। लाहौर में खिदमत मरकज़ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। IG पंजाब का एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदियां का भी दौरा। ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस के तामीराती काम का मुआयना किया। पंजाब पुलिस के आला अफसरान के लिए बड़ी खबर। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अवार्ड से नवाजा जाएगा। RPOs, DPOs और STPOs की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। अवार्ड में पीपल्स चॉइस अवार्ड, मैन ऑफ स्टील शामिल। महकमे बल्दियात का अब गांव चमकेंगे मंसूबा। महकमे ने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। पहले मरहले में 82,59,000 रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। दूसरे मरहले में 9 करोड़ 44 लाख रुपए जमा किए गए। T20 सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेली जाएंगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 12 जनवरी। पाकिस्तानी टीम का दौरा न्यूजीलैंड। PCB ने मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा।